અરે આજની ઘડી તે રળિયામણી, આરે વાલા આજની ઘડી તે રળિયામણી, મારા દાદાજી આવ્યાની વધામણી રે, આજની ઘડી તે રળિયામણી, આરે વાલા આજની ઘડી તે રળિયામણી. નિકુંજ પરિવાર તેમજ મહાત્માઓ તરફથી હાર અર્પણ કરી અમે દાદાજીના આશીર્વાદ મેળવશું. આ સમગ્ર કાર્યક્રમની અંદર 85 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે. એની પાછળ જહેમત, મહેનત સ્ટાફ મેમ્બર્સોની તો કરી જ, પણ સાથે સાથે તેઓને તૈયાર કરવાનો જસ જાય છે શ્રી જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણી. આજે નૃત્ય નાટિકા ભજવાઈ રહી છે તે આપ બધા સૌ જોશો કે એના પહેલા ચરણમાં બોધ સ્વરૂપે જે સમજ્યા એમાં આપણા સૌ માટે બહુ સુંદર બોધ છે, આપણા માનવ જીવનનો, મનુષ્ય જીવનનો. હવે એ જ બોધ આ બીજા ચરણમાં બહુ સુંદર રીતે આવશે. એટલે એ કરુણાંતિકા નથી, પરંતુ અત્યંત આનંદદાયક છે, બહુ જ આનંદદાયક છે. આમ તો એમની પેલી 32 રાણીઓ માટે તો રાણીઓ જ કહેવાય ને, રાજમહેલો તો એ તો શ્રેણિક રાજાએ જેને વખાણ્યો એટલે શું કહેવાય. આવા શાલીભદ્ર એની સમૃદ્ધિ આપણે જોઈ, અને સમૃદ્ધિ એવી કેવી એમાં પરિણામમાં કેવું પલટાય છે શાલીભદ્રજી એ જોઈએ. અને એની જોડે શું શું બને છે હવે આપણે જોઈએ બીજા પાઠમાં. આપણા જીવનમાં, આપણી જીવનની ભૂમિકાઓમાં આ જ બધું બન્યા કરે છે. મનની ભૂમિકાઓમાં, ચિત્તની ભૂમિકાઓમાં, અંતસ્કરણની ભૂમિકાઓમાં, સમગ્ર જીવનમાં આપણે જે રીતે આપણે આરાધના કરતા હોઈએ, પરંતુ આપણી આરાધનામાં આપણી અંદર વસેલા સુંદર એ જ પરમાત્મા સ્વરૂપ ભગવાન છે જ. એ સમયો સમય અહીંયા આગળ પ્રગટ સ્વરૂપે આપણને લાભ આપતા રહે છે, અવતારો સ્વરૂપે. પરંતુ આ કાળમાં ને આ યુગમાં જે અવતાર આપણને પ્રાપ્ત થયો ને આપણને લાભ મળ્યો છે અદ્ભુત, તે દાદા ભગવાન પરમાત્માનો પ્રકાશ, તેના નિમિત્ત એ છે, મૂળ નિમિત્ત છે. અને આપણે બધા સૌ એ નિમિત્તે જ ભેગા થઈએ છીએ. અમારા કવિરાજ અદ્ભુત શિરોમણી છે, એમના શાહ સાહેબ અમારા જય સચ્ચિદાનંદ સંઘના અગ્ર શિરોમણી છે, સંચાલક. તો સરયુબેન પણ બહુ જ એમનું બહુ સુંદર આ સંચાલક બળમાં એ જ બળથી ચલાવી રહ્યા છે. જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણી પણ એ જ રીતે. અને બાળકો, શિક્ષકો, પ્રિન્સિપાલ અમે જોઈએ જ છીએ. અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે, ખૂબ આનંદ થાય છે. આમાં તો એક અભેદતા જ વર્તાય છે રીતસર નહીં, આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. મારા આશીર્વાદ છે બીજા ચરણમાં આપણે જોઈએ શાલીભદ્રની સમૃદ્ધિનો શું આગળ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. સરયુબેન, તો તમે 1-2 શબ્દ નહીં બધાને ઉદ્દેશો કે ચાલુ કરાવી દેશો? લો ત્યાં ટૂંકામ કરાવી દો. જય સચ્ચિદાનંદ. બધા નૃત્ય નાટિકાની રાહ જોવે છે એટલે વધારે કંઈ નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. पुत्र, आज तुम्हारी आंखों में कोई अनोखी चमक दिख रही है. तुम्हारे मुख की प्रसन्नता देखकर मेरे चित्त में शांति हो रही है. कल तुम्हें अस्वस्थ और व्याकुल देखकर मैं तो टूट चुकी थी. क्या बात है, आज इतना खुश लग रहे हो? आज मेरे रोम रोम में आनंद ही आनंद छाया हुआ है माँ. आज मेरा जन्मदिन है माँ. जन्मदिन? आज? हाँ माँ, आपकी कोख से इस जग में आना मेरा प्रथम जन्म था. और आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है. अज्ञान को चीर कर आज मैं बाहर निकला हूं मां. इस जन्म से सारा जगत बदला हुआ नजर आता है.
ऐसा क्या हुआ पुत्र जो तुम्हारी दृष्टि से सारा जगत बदला हुआ नजर आ रहा है? तपती धूप की गर्मी के बाद जब वर्षा होती है ना माँ, तो धरती की प्यास तृप्त होती है। ऐसे ही मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव की बहुत कृपा बरसी है माँ। धर्मघोष मुनिराज से मेरी भेंट हुई थी माँ। उनकी बोध वर्षा से मेरे अंतर पट पर जमी हुई कई जन्मों की मलिनता मानो साफ हो रही है। मेरे अंतर में बैराग की भीनी भीनी महक फैल रही है माँ। सारी बातें मेरे मन को शीतलता दे रही हैं। धर्मघोष मुनि जी, बोध, इतने वर्षों से जो डर मुझे सता रहा था वही आज सामने आ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। पुत्र, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही पुण्योदय से सदगुरु से भेंट होती है। अब जल्दी से ऊपर जाओ, मेरे पुत्र वधुएं तुम्हारे लिए चिंतित हैं, कब से तुम्हारी राह देख रही हैं। हाँ हाँ, जाओ जल्दी जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ माँ, बहुत ही देर हो गई है। अब मुझे जाना ही चाहिए। मेरी मंजिल कितने जन्मों से मेरी राह देख रही है। इसीलिए मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ। अनुमति? हाँ माँ, धर्मगुरु के पास जाने की अनुमति मांग रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें उनके दर्शन की इच्छा है तो मैं पालकी तैयार रखवाती हूँ। माँ, मैं अहोरात्र उनके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा क्यों बेटा? मैं सर्व संग परित्याग करना चाहता हूँ माँ। क्या? परित्याग? नहीं। माँ, क्या हुआ माँ? दासी, मुनीम जी, देखिए माँ को क्या हो गया, देखिए। नहीं, मेरा शालीभद्र, मेरा शालीभद्र। हाँ माँ, मैं यही आपके पास हूँ माँ। शालीभद्र, मेरे पुत्र, तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरा आधार, मेरा सहारा। माँ, एक रेत की दीवार भला किसी का सहारा बन सकती है क्या माँ? आप क्षण का नहीं, शाश्वत का आधार लीजिए। लेकिन पुत्र, तुझे ऐसा व्रत लेने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे लिए तो यहाँ सारे सुख की सुविधा है ना। तो फिर इस सुख सुविधा और भोग विलास ने ही मुझे परमात्मा तक जाने से रोका है माँ। अब खोज रहा हूं मेरा मूल स्वरूप। ओह, मेरा मूल स्वरूप तो संयोगों में फिसलता गया, आसक्ति के अंधकार में उलझता गया। अब ढूंढ रहा हूं मैं कौन हूं? इस मैं को पाने की प्यास सत्पुरुष के निरंतर और निकट समागम के बिना बुझ नहीं सकती माँ। मुझे आज्ञा दो माँ कि मैं जन्म जन्म के फेरों से मुक्त होने के लिए चारित्र औषध ग्रहण करूं। चरित्र तो वज्र समान कठोर है और तुम्हारा शरीर पुष्प समान कोमल है। दुख क्या है, कष्ट क्या है, इन बातों की तुम्हें कल्पना भी नहीं है। उस दिन श्रेणिक राजा हमारे यहाँ आए थे। उनके हाथ के स्पर्श से, उनके शरीर के पसीने से तुम बेचैन हो गए थे। तो तुम संयमी साधु मुनियों के संग कैसे रह सकते हो पुत्र? कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प और प्रबल पुरुषार्थ से सिद्ध होता है माँ। शरीर की कोमलता और कठिनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। निष्ठा से किया गया उद्यम सफलता को ही प्राप्त करता है। पुत्र, मुझे तो यह मनोरथ तुम्हारी क्षमता से अधिक लग रहा है। माँ, गुरु कृपा में बल अधिक है। पंगुम लंघयते गिरीम। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुझे क्या कहूं। ये वही हवेली है
जिसका वातावरण तुझे बहुत रमणीय और आनंददायक लगता था। ये वही भोग विलास के साधन है जिससे तुम स्वर्गीय सुख का आनंद ले रहे थे। वे वही 32 लक्षणी रूप कन्याएं हैं जिसके संग तुम राग रंग में खोए रहते थे। इतने वर्षों से जिसका तुम आनंद लेते रहे, सुख पाते रहे, वो सब छोड़ के तुम चले जाओगे। बचपन में जो खिलौनों से खेलते हैं माँ, वे बड़े होते ही अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में गुरुदेव का आगमन हुआ, आध्यात्मता का प्रवेश हुआ, तो मेरी रुचि और रस बदल गए। फिर भी ये सप्त भवन, ये वैभव छोड़कर ना जाओ पुत्र। ये शुद्धात्मा वैभव समान लग रहा है माँ, उसके सामने ये सारा कचरा जैसा लग रहा है, और आप मुझे उसे ही गले लगाने के लिए कह रही हैं। माँ, आप ही बताइए, ये धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा माणिक मोती, इसमें से मृत्यु समय मेरे साथ क्या जाएगा? जो मृत्यु के बाद भी मेरे साथ नहीं जाता, वो सब मेरे लिए व्यर्थ ही है ना माँ। माना कि ये सारी चीजें मृत्यु के साथ नहीं आती, पर जब तक जीते हैं तब तक वो सुख का आनंद देती है ना, तो फिर उसका तिरस्कार क्यों? नहीं माँ नहीं, सुख तो अंदर है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अंदर का सुख अंतर के उत्तम श्रेष्ठी में है। मेवा मिठाई का आहार करने वाला मेरा लाडला भिक्षा में लाया गया स्वाधीन भोजन का आहार कैसे कर सकेगा? एक बार अंदर का स्वाद आ जाए ना माँ, तो बाहर के सभी स्वाद स्वादहीन हो जाते हैं। जहां हर पल प्रतिकूलता हो, वहां तुझे अनुकूलता कैसे लग सकती है? प्रतिकूलता आएगी तो मेरे शरीर को आएगी, और मैं तो आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, जो शरीर से भिन्न है, जहां सुख ही सुख है। हाँ, तुम तो सुख के मार्ग पर चले जाओगे, तो ये मां कैसे जी पाएगी तुम्हारे बिना? तुम्हारे पिताजी ने दीक्षा ली थी, तब भी मैं पूरी तरह टूट गई थी, पर उस समय मेरे सामने तुम थे। उस समय मैंने सोचा, मेरे जीवन की संध्या पर मुझे मेरे पुत्र का सहारा मिलेगा, पर आज तुम मुझे निराधार बनाकर चले जा रहे हो। पुत्र तो बुढ़ापे की लकड़ी समान होता है, तो वही सहारा दूर जा रहा है। मेरा तो फिर भी ठीक है, पर वो निर्दोष ऐसी मेरी 32 पुत्र वधुओं का क्या होगा? सबका भविष्य सबके साथ ही होता है। मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं या कोई मेरे लिए कुछ कर सके, ये तो जीव की मिथ्या मान्यताएं हैं। पुत्र, इस संसार में नारी को अकेला रहना कितना कठिन होता है। कहते हैं कि बाल अवस्था में पिता का, यौवन काल में पति का, और वृद्धावस्था में पुत्र का रक्षण आवश्यक होता है। वो तो पूर्व के ऋणानुबंधन से हम सब इकट्ठे हुए हैं माँ। ऋणानुबंधन पूरा होते ही हम सब अपने आप जुदा हो जाते हैं। अपना ये संबंध स्मशान की राख के साथ उड़ जाएगा। केवल धर्म का संबंध ही मोक्ष तक रहता है। इसीलिए माँ, राग छोड़कर धर्म का अनुराग वर्धमान कीजिए। सर्वकाल वही जीव का रक्षण करता है। पुत्र, तुम कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हो। सबसे पहला कर्तव्य तो मेरी आत्मा के लिए है माँ, और ये व्यापार व्यवहार अभी तक सब आपने ही तो संभाला है। 7 पीढ़ियों तक चल सके उतना धन है। आपकी सेवा में बहुत सारी दास दासियां हैं। मेरे विचार से ऐसी कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए धन संपत्ति या दास दासी पर्याप्त नहीं है। तुम माँ के हृदय को नहीं समझ सकते। बिना पुत्र के महलों में रहने वाली माता से अधिक झोपड़ी में पुत्र के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर रहने वाली माता अधिक सुखी होती है। मैंने कितने कितने सपने देखे थे। मैं कर्म बंधनों में बंधता रहूं या मोक्ष गति को प्राप्त करूं मां? कौन सा सपना देखा था? कौन किसको साथ दे सकता है? मेरे पिताजी की मृत्यु समय में आपका साथ उनको मिल सका क्या? इस भ्रांति से मुक्त होकर जागिए मां। सत्य समझ में आने के बाद आपकी कोई फरियाद नहीं होगी। एक बार जिसके साथ संबंध जोड़ा तो उसका साथ अंत तक निभाना पड़ता है। जो इससे भागे
वो समाज का अपराधी कहलाता है। जब भी कोई परमात्मा के साथ का अखंड संबंध जोड़ने के लिए दुनिया के संबंध तोड़ता है, तब समाज उसे अपराधी नहीं, संत का दर्जा देकर उसका बहुमान करता है। परमात्मा मुझे चारों दिशाओं से बुला रहे हैं माँ, हर तरफ से उनकी ध्वनि मुझे सुनाई देती है। इसलिए माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। अब तो मुझे सपने में भी ये संसार नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए। पुत्र, ऐसा है तो तुम धीरे धीरे संसार का त्याग करो। नहीं माँ, नहीं, अब मैं एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता। ये त्याग की बात सुनकर तुम्हारी पत्नियों का हृदय चूर चूर हो जाएगा बेटा, वे सह नहीं सकेंगी। मेरी विनती है कि तुम रोज एक एक पत्नी का त्याग करते जाओ। मैं बहुत अधीर हूँ माँ, बहुत अधीर हूँ मैं। केवल 32 दिनों की तो बात है, पलक झपकते ही यूं ही पूरे हो जाएंगे। किसी की आत्मा को कष्ट देकर त्यागी बनने से तो अच्छा है कि हर एक को संतोष और तृप्तता का अनुभव करवा कर त्यागी बनो। ये मेरी भावना है बेटा। ठीक है माँ, आपका मन रखने के लिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सेठानी जी, आपने त्यागाश्रम में जाने की अनुमति दे दी, और ये 32 दिन वाली बात मैं समझा नहीं। आप नहीं समझोगे मुनीम जी, शालीभद्र को मैंने जन्म दिया है। मेरे पुत्र की हर एक बात मैं जानती हूँ। जो वैभव विलास में इतने बरसों से सुख प्राप्त करता था, उसी सुख को इन 32 दिनों में मैं 32 गुना बढ़ा दूंगी। आकाश पाताल एक करके इन 32 दिनों में उसके निश्चय को कमजोर कर दूंगी। ये सूर्य समान वैभव विलास के सामने ये ओस बिंदु समान बैराग पल में हवा हो जाएगा। हाँ, हवा हो जाएगा। स्वामी, आपकी चर्चा सारे मगध देश में हो रही है। लोग कहते हैं जिसको राजा स्वयं देखना चाहे वो शालीभद्र कितना उत्तम पुरुष होगा। आप जैसे महाभाग्यशाली, महापुण्यशाली का जीवन सबके लिए प्रशंसा का केंद्र हो रहा है। विषयों के प्रवाह में बहते जाने वाले इस तिनके को दुनिया महापुण्यशाली मान रही है। कितनी दुख भरी बात है। अरे भाग्यशाली तो वे महामुनि हैं जो आत्म संपत्ति के मालिक हुए हैं। काया की माया भूलकर स्वरूप में समाये ऐसे महात्मा इस दुनिया के उत्तम पुरुष हैं। मैं तो पूरा कंगाल हूं, कंगाल। नाथ, आज आपकी प्रिय पूनम की रात है। चंदनवन के सरोवर में नौका विहार करें, वहां हम सब मिलकर मनोरंजन करेंगे। मुझे अब मनोरंजन नहीं प्रिय, मन मंथन के मार्ग पर जाना है। अभी तक सुख के लिए मैंने कितने कितने द्वार खटखटाए हैं, बस एक निज का द्वार, स्व का द्वार ही मैंने नहीं खटखटाया। देखिए नाथ, दूर दूर क्षितिज, सुंदर संध्या, पंछियों का एक साथ उड़ना। ये आकाश हमें क्या कहता है? ये कहता है प्रिय कि शालीभद्र बैराग के रंग में डुबकी लगाकर संयम के पथ पर आगे बढ़ा। आपने तो हमारे आनंद पर पूरा पानी ही उड़ेल दिया। हमें तो ऐसा लगा कि आप ये दृश्य देखकर कोई सुरेख कविता सुनाएंगे। तो सुनो, उड़ते समय ये पंछी कहते हैं, प्रभु मैं आपके घर की ओर अवश्य आऊंगा। मैं अपने घर की ओर कब जाऊंगा? आपकी बातों में आज कुछ अनोखा सुर सुन रही हूँ। हाँ प्रिय, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का संबंध पल भर का है। हाँ, हम भी यही कहते हैं। ये ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन जीवन, लक्ष्मी और यौवन वापस नहीं आते। इसीलिए नाथ,
जो क्षण मिला है उसे अपना लो, कुदरत के इस सौंदर्य का पान कर लो। आप जो सुंदर दृश्य देख रही हैं प्रिय, वो मैं भी देख रहा हूं। उसमें उसकी सुंदरता से अधिक सौंदर्य तो वो है जो उस सौंदर्य को बनाने वाला है, और वो मुझे अधिक सुंदर लग रहा है। वो ही इस सुंदर देह में विराजमान है। फिर भी देह से भिन्न है, इसीलिए देह की कोई महत्ता नहीं है। क्यों ऐसा कहते हो? देह तो आत्मा के रहने का मंदिर है। देह धर्म का साधन है, तो उसे कष्ट नहीं, रक्षण देना चाहिए। प्रभु को पाने की साधना में देह की रक्षा नहीं, भोग देना चाहिए। अनंत जन्मों तक इस देह के लिए आत्मा को अनदेखा किया है प्रिय। अब एक बार आत्मा के लिए देह की कुर्बानी देनी पड़े तो अनंत जन्मों का हिसाब बराबर हो सकता है। मुझे इस विषय तृष्णा से बाहर निकलना है, और उसका उपाय है बैराग। स्वामी, इस रंग महल में बैराग शब्द का प्रयोग उचित नहीं लगता। बैराग जैसा शुष्क जीवन और क्या हो सकता है? केवल उदासीनता और अकेलापन, किसी भी प्रकार का आनंद ही नहीं। बस एक ही ढांचे में जिए जाते रहना। अरे मुझे तो अपना जीवन एक ही ढांचे में जिए जा रहे हैं ऐसा लगता है। कोई भी नयापन नहीं है। जबकि बैरागी जीवन बाह्य रूप से चाहे एक ही प्रकार का लगे, लेकिन अंतर से हर पल नया नया पाते हैं। बैरागी को तृष्णा या अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। नाथ, जगत में हम विविध प्रकार के सुखों को भोग सकते हैं, अपनी जिंदगी पूरी हो जाए, लेकिन भोग के साधन इतने हैं जो कभी कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों से अंतर में तृप्ति नहीं होती। जीव नएपन की भ्रांति रचाकर विषय भोग बदलता रहता है। तृष्णा अनंत है, इसलिए दुख भी अनंत है। इसीलिए इस संसार से मुक्ति पानी है। अब एक ही आशा है, एक ही आशा है, सर्व संग परित्याग। सर्व संग परित्याग? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं स्वामी, स्वामी ऐसा मत कीजिए। विवाह का वो मंगल दिन याद आ रहा है, जब शालिभद्र के साथ मंगल फेरों के समय मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री समझ रही थी। भविष्य के कितने सुंदर सपनों को हमने सजाया था, आज वो सारे सपने आंसुओं में बह रहे हैं। जन्म जन्म का साथ सोचा था, पर ये तो अभी से छूट रहा है। विरह की ज्वाला मेरे अस्तित्व को जला रही है। जरूर किसी ने उनके कान भरे होंगे, नहीं तो अपने स्वामी ऐसा कभी नहीं कहते। कैसे उनके बिना जीवन बीतेगा, इस कल्पना से ही मेरे अंग कांपने लगे हैं। क्या वो हमें सचमुच छोड़कर जा रहे हैं? ऐसे कैसे जाएंगे? अभी भी बाजी अपने हाथ में है। पूरे के पूरे 32 दिन हैं। प्रेम से, तर्क से और रूप से हम उनको रिझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हाँ, हम अपने मोहजाल में उन्हें फिर से बांधेंगे। एक बार जब भाप बनकर आकाश की ओर गति करता है, उस बादल को कौन बांध सकता है? धरती का संबंध उन्होंने कब का छोड़ दिया है। ऐसे ही शालिभद्र इतने ऊंचे उठे हैं कि अब तो उन्हें अपने मोह जाल में बांधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वे अपने निश्चय में मेरु पर्वत जैसे स्थिर हैं, उन्हें मोहना कठिन है। सच कहा, हम अपनी सुंदरता से उन्हें मुक्त नहीं कर सकते। वे स्वयं ही आंतरिक सुंदरता से मुक्त हैं। अरे, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है,
और अभी से हार मान ली? हाँ, क्योंकि मेरी हर हार में उनकी जीत है। क्या तुम्हारा हृदय पत्थर हो गया है? नहीं, मैंने हृदय पर पत्थर रखा है। स्वामी के कल्याण मार्ग में रोड़ा नहीं बनना चाहती। उनके सुख में हमारा सुख है, ऐसा कहने की नहीं, करने की घड़ी आई है। प्रेम का अर्थ है देना, वासना का अर्थ है लेना। प्रेम समर्पण है, वासना आक्रमण है। प्रेम स्वतंत्रता में है, वासना गुलामी में है। प्रेम द्वार खोलती है, वासना कैद होती है। प्रेम त्याग है, वासना आग है। प्रेम का यज्ञ अपने स्वार्थ की आहुति मांग रहा है। क्या हम पीछे हट जाएंगे? बस कीजिए। मेरा वियोग आज आपको विष जैसा कड़वा लगेगा, पर वो ही प्रभु को पाने में निमित्त बन जाए तो ये अनंत सुख देने वाला अमृत फल हो जाएगा। मैं कुछ पल यहीं बिताना चाहता हूं। आप लोग अपने अपने कक्ष में जाइए। जैसा आप कहें स्वामी। मेरे अंतर में जागा हुआ दिव्य प्रेम कह रहा है, केवल इन 32 को ही नहीं, बल्कि सारे अखिल ब्रह्मांड के जीवों को अपने में समाविष्ट कर लो। सभी में मेरे जैसी आत्मा है, सभी में शुद्धात्मा देखो, सभी में शुद्धात्मा देखो। सुभद्रा अपने भ्राता शालिभद्र के संसार त्याग की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई। भाई के प्रति प्रेम आज आंसू बनकर आंखों से बहने लगा। उस समय धन्ना प्रातःकाल स्नान गृह में स्नान के लिए विराजमान थे। धन्ना की 8 पत्नियां धन्ना को सुगंधित जल से स्नान करवा रही थीं, अंग पर उपटन का मर्दन कर रही थीं। स्वामीनाथ की सेवा कर पाए, कोटि कोटि धन्य भाग्य हमारे। स्वामीनाथ की सेवा कर पाए। केसर चंदन का उपटन लगाए, सुगंधी जल से स्नान कराए। केसर चंदन का उपटन लगाए, सुगंधी जल से ये क्या सुभद्रा, तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों से आंसू? ऐसी क्या बात हो गई सुभद्रा? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं सुभद्रा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। यहाँ कोई ऐसी बात जरूर हुई है जिसका तुम्हें दुख हो रहा है। नहीं, अपने भवन में इतना सा भी दुख नहीं है, लेकिन मेरा भाई शालिभद्र। क्या हुआ शालिभद्र को? सुभद्रा, कुछ कहो भी। ऐसे रोती रहोगी तो उलझन बढ़ती जाएगी। स्वामी, मेरे भाई ने संसार त्याग करने का निश्चय किया है और अब मुनि व्रत लेना चाहते हैं। हाँ, शालिभद्र मुनि व्रत लेना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे अच्छी खबर कहते हैं? पिता का घर भाई के बिना सूना हो जाएगा, मेरी भाभियां अकेली हो जाएंगी, माँ किसके सहारे जिएंगी, पुत्र का विरह सह पाएंगी क्या? ओहो, तो ये आपको बहुत बड़ा दुख लग रहा है। शालिभद्र संसार त्याग रहा है, इसमें इतना दुख? आपको ये दुख छोटा सा लग रहा है? रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, सभी बहनें खुशी खुशी अपने मायके जाएंगी, भाइयों को राखी बांधेंगी। मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी?
बहना बहना कहते हुए मेरे भाई की प्यार भरी पुकार अब मुझे कभी सुनने नहीं मिलेगी। ये केवल सोचती हूँ तो आंखें रो देती हैं, हृदय भर आता है। प्रिय, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझ सकता हूँ। जिसके साथ साथ बचपन बीता हो, साथ साथ बड़े हुए हों, ऐसे प्यारे भैया के प्रति कितना अनुराग होता है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन प्रिय, इस बिरहा में, इस जुदाई में तुम्हारे भाई का सुख समाया हुआ है। संसार के सभी दुखों का नाश कर सके ऐसे भाई को आदि अनंत काल तक मोक्ष का सुख चारित्र रत्न प्राप्त होगा। उसके प्रभाव से मोह राजा को जीतकर परमानंद पद प्राप्त होगा। सुभद्रा, तुम उसके सुखों को सोचोगी तभी तुम्हारे दुखों का बोझ हल्का होगा। नाथ, कहाँ हवेली का सुख और कहाँ कठिन वनवास। गादी तकिए नहीं, रथ पालकी नहीं, दास दासी नहीं, हीरा माणक नहीं, आभूषण नहीं, रेशमी वस्त्र नहीं, कोई सुविधा नहीं। प्रिय, वहां गादी तकिए या पालकी नहीं होगी, लेकिन वीर प्रभु का पवित्र सानिध्य होगा। प्रभु के दिव्य देशना का मधुर श्रवण होगा। वहां दास दासी के सेवा का सुख नहीं होगा, लेकिन गणधर, आचार्य, उपाध्याय आदि महातपस्वी और साधुओं की सेवा में अनुपम आनंद होगा। संयम का भेष और आत्मगुण रूपी आभूषणों से सुसज्जित होने के लिए आकर्षित हुए हैं वो। हीरा माणिक व रेशमी वस्त्र क्या धारण करेंगे? नाथ, चारित्र संयम अति दुष्कर है। कदम कदम पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना होता है। घने जंगलों में हिंसक पशुओं का भय होता है, वहां उसको कौन रक्षण देगा? प्रिय, बाहर के हिंसक पशु से उतना डर नहीं होता जितना क्रोध, लोभ, मान माया से होता है। ये सब के रक्षणहार जिनेश्वर भगवंत हैं। उनका धर्म भी अहिंसक है, फिर प्रतिकूलता कैसी? मान लिया प्रतिकूलता का भय नहीं रहेगा, लेकिन नाथ, दुख सहने की शक्ति तो होनी चाहिए। फूलों से भी सुकोमल मेरे भाई की काया संयम के कठोर तपश्चर्या कैसे सहेंगे? नाजुक प्रकृति वाला मेरा भाई, रेशम की रुई की गादी में सोने वाला मेरा भाई शिला पर सिर रखकर कैसे सो सकता है? हवेली में तीनों ऋतु से विपरीत वातावरण में रहने वाला मेरा भाई कड़ी धूप में विहार कैसे कर सकेगा? एक वस्त्र में ठंड कैसे सहन होगी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सुभद्रा। तुम्हारे भाई ने भगवान महावीर के पथ पर जाने का पक्का निश्चय किया है। शरीर के सारे सुखों की आहुति देने के लिए वो तैयार है, और तुम उसे रोकना चाहती हो? नहीं नहीं, शुद्ध भक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो कोई किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं रहती और कोई दुविधा नहीं रहती। हाँ, ये बताओ सुभद्रा, कल दीक्षा महोत्सव में मंगल मुहूर्त किस समय पर है? उसकी सारी तैयारियां मैं स्वयं करूंगा। हाँ स्वामी, हम भी आपके साथ हैं। रुकिए भी, दीक्षा महोत्सव कल नहीं है, आज से 32 दिन के बाद होगा। 32 दिन के बाद? अर्थात? मेरे भाई ने माता की विनती को मान दिया है। हाँ? नित्य एक एक पत्नी का त्याग करेंगे। 32वें दिन वे संसार त्याग कर संयम ग्रहण करने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। सुभद्रा, तुम्हारा भाई तो मुझे कायर लगता है। कायर? हाँ, कायर। मोह शत्रु के सामने लड़ने के बजाय तेरा भाई पीछे हट रहा है। मेरा भाई पीछे नहीं हट रहा है। वो तो माता के मन को ठेस ना पहुंचे इसलिए उनकी आज्ञा का सम्मान किया है। चलो माना कि आज्ञाकारी है, लेकिन थोड़ा सा मूर्ख भी लगता है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? जिस घड़ी शुभ विचार आए उसी समय निर्णय लेकर शुभ कार्य कर लेना चाहिए। सुभद्रा, धर्म गतिशील है और तुम्हारा भाई देर कर रहा है, इसलिए मैंने उसे मूर्ख कहा। मेनका और रंभा जिसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसी 32 रूप सुंदरियां मेरे भाई के अंतःपुर में है। 64 कलाओं में निपुण, उसकी सेवाओं में सदा तैयार रहने वाली पत्नियों को त्यागने की जो हिम्मत कर रहा है, उसको आप कायर और मूर्ख कहते हैं? हाँ, हिम्मत तो कर ली, पर मन निर्बल है। शालिभद्र को संयम की रट लगी है, तो एक एक पत्नी क्यों छोड़ रहा है? उसे तो एक साथ
सभी पत्नियों को 32 की 32 पत्नियों को त्याग देना चाहिए। स्वामी, परोपदेश में कई लोग कुशल होते हैं, लेकिन जब वही कार्य स्वयं को करने का समय आता है तब वो बहाना करके खिसक जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा संयम ग्रहण का निश्चय कर ले, वो कोई वीर ही हो सकता है, और वो वीर है मेरा भाई शालिभद्र। शालिभद्र वीर जरूर है, पर मोह के बंधन ने उसे बांध रखा है। दीक्षा की शिक्षा देने की बातें करना बहुत आसान है, सरल है, लेकिन स्वयं को अंगीकार करना बहुत कठिन है। मेरे भाई की तो 32 पत्नियां हैं, लेकिन आपकी तो केवल 8 ही हैं। उन 8 के मोह से आप अलिप्त हो सकते हैं, जुदा हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दीक्षा लेना सरल है, संसार त्यागना सरल है, तो आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अरे मेरा भाई तो 32 दिनों के बाद भी मुक्त हो जाएगा, और आप तो वीरता की बड़ी बड़ी बातें करते रह जाएंगे। सुभद्रा, ऐसा है तो आज ही इसी क्षण मैंने अपनी 8 पत्नियों का त्याग किया। क्या कहा आपने? हाँ, आज इसी शुभ घड़ी में, मंगल क्षण में मैंने तुम 8 का त्याग किया। ये क्या कह दिया स्वामी? मैंने तो आपको बस ऐसे ही कहा था। सुभद्रा, ऐसे ही कहे हुए शब्द भी किसी के जीने की राह बदल सकते हैं। स्वामी, दोषी मैं हूँ, मुझे सजा दीजिए। नहीं सुभद्रा, तुमने तो मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। मोह निद्रा से जागृत करने वाले को गुरु कहते हैं। वो गुरु तुम हो। मेरे उद्धार का प्रथम श्रेय तुम्हें जाता है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं स्वामी? क्रोध में आकर मैंने कुछ बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। तुम धन्य हो देवी। आज तुमने उचित कथन कहकर धन्य किया है। तुम्हारे शब्द की एक चिंगारी ने मेरे अंतर मन में बैराग की अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब उसे किसी का भी स्नेह जल बुझा नहीं पाएगा। मेरा निश्चय अटल है। मैंने संसार त्याग कर संयम के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। रुकिए भी नाथ, आप हमें ऐसे छोड़कर ना जाइए। नाथ, विवाह के क्षण आपने कहा था ये साथ कभी नहीं छूटेगा, आज आप भूल गए। कुलवान पुरुष प्राणांत में भी साथ नहीं छोड़ते, और आप? रुकिए। अग्नि के सामने सप्तपदी के फेरों में आपने भी कहा था कि आप हमारी उन्नति में सहायक होंगी। वो वचन आप भूल गईं। संसार के कारागृह में अब मुझे बंदी बनकर नहीं रहना। राग के बंधनों की दीवार फांदकर आपको मेरे साथ वीर पथ पर आना हो तो खुशी से आ सकती हैं। हस्त मिलाप तो मेरा कब का हो चुका, अब होगा आत्म मिलाप। स्वामी! स्वामी! शालिभद्र, ओ शालिभद्र, नीचे आ जाओ। कायरता छोड़ो, सिंह की तरह निकल चलो। अरे, ये तो तन्नाजी पुकार रहे हैं। तन्नाजी? और ऐसी अवस्था में? शालिभद्र, जागृत हो जाओ। तुम्हारे बैराग को कौन सा ग्रहण लग गया? जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, रुकना नहीं। अरे तन्नाजी, आप इस तरफ? क्या बात है? भगवान के संयम मार्ग पर मैं प्रयाण करने जा रहा हूँ। आपको भी वहीं जाना है तो हम साथ साथ चलते हैं। क्या कहूँ धन्नाजी, मुझे ये 32 दिन 32 युग जैसे लग रहे हैं। एक ही रटना है, दीक्षा। लेकिन कब? अरे अब तुम्हारी देर से देर है। माँ की ममता ने मुझे रोक दिया है। ये अवसर त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है, तुम पीछे रह जाओगे। मनुष्य के जन्म का एक एक क्षण मूल्यवान है। जो वीर मिथ्यात्व की भारी जंजीर को पल में तोड़कर मुक्त हो सका, उस वीर पुरुष को एक ममता का कच्चा धागा बांध रहा है। ये जीव ऐसे ही अटक रहा है, किसी को राजी करने में और किसी से राजी होने में, किसी को सुखी करने के भ्रम में तो किसी को दुखी करने के भ्रम में अनंत काल से पीड़ित है ये जीव। तेरी आत्मा के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अगले क्षण का हमें ज्ञान नहीं, फिर 32 दिन तक तुम कैसे रुक सकते हो?
अब चूक गए तो अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस बैराग रूपी महासागर में गोता लगाने के लिए संसार का कोई भी परिबल अब मुझे नहीं रोक सकता धन्ना जी। मैं उसे पार करके ही रहूंगा। नहीं पुत्र नहीं। अब मुझे मत रोकिए माता जी। पहाड़ पर की एक नदी महायात्रा के लिए उत्साह और उमंग से निकली थी, पर बीच में रेत आते ही वो सूख जाती है। क्या आप भी ऐसा सोचती हैं? क्या आपके पुत्र का जीवन संसार की तपती रेत में सूख जाए, अपने जीवन ध्येय पर पहुंचे बिना ही अंत आ जाए? पर तुम 32 दिन तक यहाँ रुकोगे, ऐसा तय हुआ था ना? 32 दिनों तक मैं जीऊंगा ही ऐसा आप निश्चित रूप से कह सकती हैं तो मैं रुक जाता हूँ माता जी। ऐसी मुझ में शक्ति कहाँ? मृत्यु के पंजे से मुझे छुड़वा सकती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। वो कैसे संभव है? फिर तो माँ मेरा यहाँ रहना भी असंभव है। अब मैं चला भगवान के पास दीक्षा लेने के लिए, आराधना के पथ पर, अहिंसा के नंदन वन में, जहां संयम और स्थिरता का सरोवर लहरा रहा है, जहां आत्मगुण के सुंदर कमल खिलते हैं, जहां चारों ओर वितरागता की महक है, जहां हमारे गुरुदेव हैं, हमारे प्रभु हैं। माता जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। ये क्या कह रहे हो धन्ना जी? पुत्र का दर्द अभी मिटा नहीं, वहां आप भी? मेरी पुत्री बेचारी सुभद्रा का क्या होगा? माँ, मुझे बेचारी मत कहिए। जिसका पति और भाई सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र रूपी अमूल्य रत्न के स्वामी होने वाले हैं, वीर प्रभु के वारिस होने वाले हैं, वो अब बेचारी कहाँ रही? वो तो महाभाग्यशाली है। मैं आंसू नहीं बहाऊंगी माँ, मैं भी मेरे स्वामी के कल्याण पथ पर चलूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। आप सब मुझे छोड़कर चले जाओगे? माँ, अब ये कदम पीछे गए तो ये संसार का आंगन हम कभी नहीं पार कर सकेंगे। परम पथ पर प्रयाण करने दीजिए, प्रभु धाम जाने दीजिए। हमें हमारा ध्येय पुकार रहा है माँ। आप सभी इतने निष्ठुर, इतने वज्र हृदय ना बनो। मैं आपसे अपना पल्लू फैलाकर विनती करती हूँ। आपकी माता होकर भी मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माता जी? क्या आप चाहती हैं कि आपका लाडला पुत्र अनंत काल तक दुख की भीख मांगता घूमे, इस जगत का झूठन खाता घूमे? क्या आप मेरा कल्याण नहीं चाहती माँ? चाहती हूँ पुत्र, अवश्य चाहती हूँ। आपका पुत्र सुखी हो, ये आपकी मंगल कामना नहीं है क्या? अवश्य पुत्र, पर तुम मेरे शरीर का अंग हो, उसको मैं अपने से जुदा कैसे कर सकती हूँ? अब वही अंग जिनेश्वर प्रभु के साथ जुड़ रहा है माँ, उस तरफ आप दृष्टि क्यों नहीं करती? थोड़ा और रुक जाते, माता पुत्र का संबंध है। ऐसे स्नेह संबंध तो जन्म जन्मांतर तक आते ही रहते हैं, पर अभी तक ऐसा जन्म नहीं आया जिसमें परमात्मा के साथ संबंध अखंड निभाया हो। आज ये अपूर्व संबंध बांधने की घड़ी आई है माँ, उसका स्वागत कीजिए। मंगल प्रसंग तो बहुत सारे आए, पर यह सर्वोत्कृष्ट मंगल साधने का प्रसंग प्रथम बार आया है माँ। कदाचित अनंत जन्मों में यह प्रसंग आपके लिए भी पहली बार आया होगा, तो इसी खुशी के साथ मुझे अनुमति दीजिए माँ। ठीक है, एक बार, बस एक बार, आखिरी बार, ये माँ तुझ पर अपनी ममता न्यौछावर कर रही है मेरे लाल। सिद्ध पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करे। सिद्ध पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करे। भगवान महावीर स्वामी की जय, जनेश्वर प्रभु की जय, वीर प्रभु की जय, धन्ना शालिभद्र की जय। भगवंत ने सभी को दीक्षा दी। दोनों मुनि कठोर तप करने लग गए। इस कठोर तप और ध्यान द्वारा उनका शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया। एक बार भगवान महावीर राजगृह पधारे। हजारों लोग भगवान की वंदना करने आए। धन्ना एवं शालिभद्र मुनि ने प्रभु से आज्ञा मांगी। भगवान,
मांस खमण के पालने हेतु भिक्षा के लिए नगर में जाएं? जाओ, आज तुम अपनी माता के हाथ से पारणा ग्रहण करोगे। प्रभु की आज्ञा लेकर दोनों तपस्वी मुनि नगर में भ्रमण करते हुए भद्रा सेठानी के भवन की तरफ गए। चलो सारथी, जल्दी चलो। आज भगवंत के साथ धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि भी पधारे हैं। हमें उनके दर्शन करने हैं। जल्दी से रथ तैयार करो। दोनों मुनियों को घर के सामने खड़ा देखकर भी भद्रा सेठानी उन्हें पहचान न सकी। रथ में बैठकर उनके सामने से निकल गईं। और शुद्ध भिक्षा न मिलने पर दोनों मुनि वापस लौटे। रास्ते में एक बूढ़ी ग्वालन मिली। उसके सिर पर दही का मटका रखा हुआ था। उसने मुनियों को देखा तो वात्सल्य उमड़ पड़ा, रोम रोम खिल उठा। वो सोचने लगी, ये मुनि कौन है? क्यों मेरे मन में इतना स्नेह उमड़ रहा है? हाँ, ये दही इन मुनियों को दे दूं। मुनिवर, वंदन करती हूँ। मेरे हाथ से भिक्षा लोगे? तपस्वी मुनियों ने देखा शुद्ध निर्दोष भिक्षा है और दाता के मन में भक्ति और प्रसन्नता है। ये देखकर उन्होंने भिक्षा का पात्र निकाला। ग्वालन ने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुनि महाराज को भिक्षा दी। भिक्षा लेकर मुनि महाराज प्रभु के पास आए। भगवंत, आपने तो कहा था कि आज आपकी माता के हाथ से पारणा प्राप्त होगा, परंतु माता के घर पर तो भिक्षा नहीं मिली और हमें किसी ने पहचाना भी नहीं। वत्स, जो तुम्हें दही का दान देने वाली वृद्ध ग्वालिन मिली थी, वो तुम्हारी पूर्व जन्म की माता है। शालिभद्र, याद करो, पूर्व भव में तुम संगम नाम के एक ग्वाल बालक इसी धन्ना माता के पुत्र थे। एक दिन संगम को खीर खाने का मन हुआ। घर की परिस्थिति नाजुक थी। संगम की मां कहां से खीर बनाती? लेकिन संगम ने तो हठ पकड़ी। उसकी हठ की वजह से गुस्से में संगम की मां संगम को मारने लगी। संगम जोरों से रोने लगा। यह सुनकर पड़ोसन आई। संगम क्यों रो रहा है? जानकर दयालु पड़ोसन चावल, शक्कर, दूध, इलायची, बादाम वगैरह सामग्री संगम की मां को देकर गई। संगम की मां ने संगम के लिए उसी से खीर बनाई। खीर गर्म थी। ठंडी करने थाली में रखकर संगम की मां पानी भरने गई। उस समय संगम के घर मुनिराज भिक्षा लेने पधारे। धर्मलाभ, धर्मलाभ। जो मुनिराज 1 मास से उपवास कर रहे थे और आज उनका पारणा था। संगम ने वही खीर मुनिराज को भिक्षा में दे दी। बाद में बची खीर संगम ने खाई। बहुत ज्यादा खीर खाने की वजह से पेट दुखने लगा। और प्राण त्याग दिए। संगम ने शुभ घड़ी में अच्छे भाव से सुपात्र को दान किया
तो उसने भोग समृद्धि के साथ साथ मनुष्य गति का आयुष्य बांधा। इसलिए मगध की राजगृही नगरी के श्रेष्ठी गोभद्र सेठ भद्रा सेठानी के यहां संगम का जन्म हुआ, शालिभद्र नाम से। मुनि शालिभद्र की स्मृति में पूर्व जन्म की घटना चित्रित हो उठी। इसके बाद दोनों मुनि वैभवगिरी पर्वत पर गए, वहां अनशन ग्रहण किया। इधर भद्रा सेठानी भगवंत के पास आई। भगवंत, धन्ना और शालिभद्र मुनि कहाँ हैं? मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। भद्रे, वे तुम्हारे घर भिक्षा लेने गए थे, किंतु तब से जीर्ण कृश शरीर के कारण आप किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। तुम मेरी वंदना की आने की शीघ्रता में वहां से निकल गए, अतः दोनों मुनि भिक्षा लिए बिना ही वापस आ गए। तो अब दोनों मुनि कहाँ हैं? अब दोनों मुनि अनशन ग्रहण कर वैभवगिरी पर चले गए हैं। तो भगवंत, हम उनके दर्शन करने वैभवगिरी पर जाएं? अवश्य। भगवान महावीर स्वामी की जय, जनेश्वर प्रभु की जय, वीर प्रभु की जय, धन्ना शालिभद्र की जय। शालिभद्र की समृद्धि, 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 शालिभद्र की समृद्धि।